Hello guys, welcome to Exambee. My name is Amit and I welcome you all to the part 24 of our RBI Grade B 2024 300 Most Important Question Series. In the last video, we asked you this particular descriptive question. Discuss big five model of personality. How can understanding these traits help managers to improve team performance? In such questions, you will have to understand कि ये जो क्वेश्चन है इसमें दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट में आपको पूछा जा रहा है कि बिग फाइव मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी क्या है उसको डिस्कस करो. एंड नाउ ये चीज जो बिग फाइव मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी, हाउ these traits will help managers to improve team performance. So these two parts has to be addressed in this particular question. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में आपको इंट्रोड्यूस करना है बिग फाइव मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी क्या है, जो ओशन मॉडल है उसको आपको इंट्रोड्यूस करना है एंड emphasizing their relevance in the workplace. Then in the body, explain how understanding these traits can benefit managers in improving team performance. Like क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, like aligning roles with the team members strength. आपको स्ट्रेंथ पता है कि ये एक्स्ट्रावर्जन है, एग्रीबलनेस है, उस हिसाब से आप मैनेज कर रहे हो. फोस्टरिंग बैलेंस टीम, एक टीम में बैलेंस लोगों को रखा जा रहा है कि हर काइंड ईच टाइप ऑफ पीपल आर देयर इन द टीम. टेलरिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, किस टाइप पर्सनैलिटी को कैसे कम्युनिकेट करना है. लेवरेजिंग एग्रीएबल इंडिविजुअलनेस फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन यूजिंग पर्सनलाइज्ड मोटिवेशन टेक्निक्स. ये सारा चीज आप इस तरह से यूज कर सकते हो. कंक्लूजन में सेम कि बिग फाइव मॉडल को आप एक बार इसका इंपॉर्टेंस समराइज कर दो. अगेन आई एम रिपीटिंग, कुछ नया चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करना है. जो आपने यहाँ पे लिखा है उसी को यहाँ पे बस कंक्लूड कर लो. ठीक है. तो दिस इज हाउ यू नीड टू अप्रोच द डिस्क्रिप्टिव आंसर्स इन द मैनेजमेंट पार्ट. एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको मैक्सिमम एग्जाम्पल्स देने हैं. जैसे मैनेजमेंट में आपको जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, दैट दोज आर फॉर योर एग्जाम्पल्स. किस टाइप के एग्जाम्पल्स आप मेंशन कर रहे हो, इसी पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. यूनियन कैबिनेट हैज एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशंस ऑफ हाई लेवल कमिटी ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शंस, जो श्री रामनाथ कोविंद उसके चेयरमैन थे. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ की रिकमेंडेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कमिटी. इसमें से जो रिकमेंडेशन दिए थे, कौन सा इसमें से वो रिकमेंडेशन में नहीं है. Yes, phasing out Election Commission of India, replacing it with a new electoral body. This was not one of the recommendations of that particular body. The BioRide scheme approved by the Union Cabinet focuses on cutting-edge research in biotechnology. Which of the following is not a component of the BioRide scheme? इनमें से BioRide scheme में कौन सा component नहीं है? BioRide अभी recent scheme है, बहुत important बन जाता है. Pause the video and then answer. Yes, implementation of a nationwide genetic mapping initiative is not a part of BioRide. बाकी biotechnology research and development, industrial entrepreneurship development, biomanufacturing and biofoundry, supporting startups and innovation in the biotech sector. These are the components of this BioRide scheme. Coming to the next question, Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan aims to improve the socio-economic conditions of the tribal community. It is asking not a feature of this particular scheme. Schemes are always important for ESI. चाहे आपको अभी तो डिस्क्रिप्टिव में भी एक दो स्कीम पूछ रहे हैं और ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे स्कीम्स आपके आएंगे. सो ऑब्जेक्टिव ESI इज ऑल अबाउट PIB and government schemes. So not a feature of this particular scheme. Yes, launching a scholarship scheme for tribal students pursuing higher education abroad. This is not a part of this scheme. पार्ट ऑफ में क्या आ जाता है? ट्राइबल होम स्टे, सिकल सेल डिजीज, फॉरेस्ट राइट्स रिकॉग्निशन, मार्केटिंग सेंटर फॉर ट्राइबल प्रोडक्ट्स. सो ये सारी चीजें आपको फीचर्स में आ जाते हैं, but not anything about the higher studies. So coming to the next question, the Pradhan Mantri Annayata Aaya Sanrakshana Abhiyan or PM ASA scheme is designed to ensure remunerative prices for farmers. Which of the following is not a component of PM ASA? PM ASA में कौन सा component नहीं है आपको पूछा जा रहा है. Pause the video and then answer. Yes, export incentive scheme. Exports का कोई लेना देना नहीं है. This is about our domestic market. ठीक है, domestic market के हिसाब से. Price support scheme, price stabilization fund, market intervention scheme and price deficit payment scheme. These are there to help the farmers and to stabilize the prices inside a domestic market. तो export का कोई लेना देना नहीं है. तो D is the correct answer. So this NBS, that is nutrient-based subsidy rates for Rabi season 2024 cover phosphatic and potassic fertilizers. Which of the following is not an objective of NBS policy? Again NBS policy पे अभी PIB में आपको देखने को मिलेगा, updates हुए हैं. So that makes this particular scheme very important. Pause the video and then answer. Yes, providing subsidies for organic and biofertilizers in addition to PNK fertilizers नहीं. आपको nutrient based subsidies में PNK fertilizers ही आते हैं.
तो बायो फर्टिलाइजर्स एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स टू फार्मर्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस, बैलेंस यूज कैसे करना है फर्टिलाइजर्स को वो सिखाया जाएगा, सब्सिडीज रैशनलाइजेशन एंड रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्टेड फर्टिलाइजर्स, दीज आर द पार्ट ऑफ एनबीएस पॉलिसी. So here is the next question. The Quad Leaders Summit and Wilmington, Delaware में हुआ अभी recently saw the announcement of various initiatives. Which of the following initiatives was not launched at this summit? तभी ये जो Quad Leaders Summit हुआ Delaware में, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें अनाउंस किया गया. Which of the following is not out of one of those initiatives? So pause the video and then answer. Yes, Quad Principles for Sustainable Urban Development in the Indo-Pacific, ऐसा कोई भी इनिशिएटिव नहीं था. बाकी हमें पता है कि ये कैंसर मूनसूट एंड मैत्री सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स ये सारी चीजें हुआ है. एंड फर्स्ट एवर क्वाड एट सी ऑब्जर्वर मिशन, दीज आर द इनिशिएटिव्स दैट वर अनाउंस्ड. तो ये समिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. रीजनल कोऑपरेशन आपका रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन आपके सिलेबस में है, तो एनीथिंग दैट हैपेंड ऑन दिस रिगार्ड becomes very important for our exam. चलिए, what is the value of India's digital payment index for September 2023 as per the circular release in January 2024? तो ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, दो इट इज आपको लगेगा कि ये ओल्ड है, बट ऐसे क्वेश्चंस हमने देखा है ऑफ लेट. दे हैव आस्क्ड कोटिंग द डेट्स, तो फॉर दैट रीजन आई पिक्ड अप दिस क्वेश्चन. तो इस हिसाब से आपको भी अंदाजा लग जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे वो आपको रिवाइज करना है, ठीक है. तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का वैल्यू वाज 418.77 in September 2023. So what is the maximum limit for the lead banks unsecured loans under the revised guidelines for the urban cooperative banks with priority sector loans? तो आपको पूछा जा रहा है मैक्सिमम लिमिट फॉर द लीड बैंक्स अनसिक्योर्ड लोन्स, क्या इसमें परसेंटेज है? Yes, the 35%, ठीक है. मास्टर सर्कुलर एंड एक्सपोजर नॉर्म्स फॉर यूसीबी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का मास्टर सर्कुलर में ये था. UCBs whose priority sector loan portfolio exceeds 90% may grant unsecured advances up to 35% for their total assets. Okay, coming to the next question. Which of the following is not an advantage of formal communication in an organization? Formal communication का कौन सा इनमें से advantage नहीं है? Again, very commonsensical. Pause the video and then answer. Yes, it is the fastest and flexible way of communication. नहीं, फॉर्मल कम्युनिकेशन आपको पता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में लैंग्वेज देखा जाता है, हियरार्की देखा जाता है, कौन सा मीडियम में आप दे रहे हो वो भी देखा जाता है. तो इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, ठीक है. देखो यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ ऑथोरिटी ऑफ द ऑफिसर्स, यस. एस्टेब्लिश क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन. फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑलवेज क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इट इज इजी टू ट्रैक द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. जैसे ऑफिस का लेटर आता है, नहीं तो ऑफिस में मेल आता है, इट इज इजी टू ट्रैक. तो सिमिलरली आप ट्रैक कर सकते हो. तो ये लेकिन फास्टेस्ट एंड फ्लेक्सिबल वे नहीं है. ओके, coming to the next question. Which of the following management principles states that no employee should report to more than one superior? जैसे ये एम्प्लॉय एक्स है तो ही शुड रिपोर्ट टू सुपीरियर वाई. ऐसा नहीं कि ए जेड ये सबको रिपोर्ट कर रहा है. तो ये कौन सा प्रिंसिपल बात कर रहा है यहाँ पे? यस, यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, ताकि एक टाइप का ऑर्डर उसे मिले, वेराइटी ऑफ ऑर्डर्स ना मिले, ठीक है. तो यूनिटी ऑफ कमांड इज द प्रिंसिपल जहाँ पे no employee should report to more than one superior. तो ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. हियर इज अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन फॉर यू. मल्टीकल्चरलिज्म हैज रीशेप्ड द इंडियन अर्बन लैंडस्केप्स इन मेजर मेट्रोपॉलिटन एरियाज ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स. आपको डिस्कस करना है पॉजिटिव नेगेटिव्स, इसके जितने भी एंगल्स पॉसिबल है आपको उसको मेंशन करना है. आप स्ट्रक्चर बना के कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो. देन इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग द आंसर. आई होप ये वीडियो से आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला है. So do not forget to like this video and share this with the relevant persons. And do not forget to subscribe to our channel and press the bell icon as well. Prepare 50% faster with iExamB. This is Amit signing off.